Smile, hello, friends. Let me start with a beautiful line that I read somewhere that whatever is out of your control should be out of your mind. पर क्या सच में ऐसा हो पाता है? नहीं ना। हम ऐसा नहीं कर पाते हैं अपने जीवन में कि जो परिस्थितियां या जो सिचुएशंस हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं, कहीं ना कहीं हमारे मन में वो बात घूमती ही रहती है ना। और अगर हम इन इमोशंस को सही तरीके से चैनलाइज ना करें या ये इमोशंस अनहील्ड रह जाएं, तो लॉन्ग टर्म में ये कहीं ना कहीं हमारे माइंड और बॉडी पर इफेक्ट लाते ही हैं। तो चलिए, आज के इस एपिसोड में हम जानने की कोशिश करते हैं कि स्माइल के द्वारा, माइंड स्माइल मेडिटेशन एंड बॉडी स्माइल मेडिटेशन के द्वारा किस प्रकार हम अपने इन इमोशंस को हील कर सकते हैं और कैसे हम स्माइल मेडिटेशन से बेनिफिट ले सकते हैं। मैं स्माइलर मनप्रीत आप सबका स्वागत करती हूँ और आज के इस एपिसोड में अपने गेस्ट का भी स्वागत करती हूँ और आप सब से अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। हमारे पहले गेस्ट हैं SJT पवन कुमार झुनझुनवाला जी। He is the coordinator of International Sujok Association Gujarat chapter. He is an advanced Sujok therapist and a dedicated Sujok lecturer, although he does not practice professionally. Since 1995, he has been actively associated with the ISA and has devoted himself to the promotion and propagation of Sujok therapy. He has completed numerous advanced courses under the guidance of Professor Park Jeru, the founder of Sujok therapy. Inspired by his teachings, Pavan Kumarji has been serving the Sujok community with wholehearted dedication and selfless commitment. He is widely recognized as the leading promoter of Sujok therapy in Surat and has played a significant role in spreading Sujok knowledge and awareness throughout Gujarat. आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। We welcome you. हमारे नेक्स्ट गेस्ट हैं कमांडर राजेंद्र पवार जी। He is a postgraduate mechanical and marine engineer. He considers himself as a forever learner. While serving in the Indian Navy for over 25 years and manufacturing industry for 6 years, his curiosity and spirit of learning led him to study diverse subjects such as psychology, firefighting, and medical first aid. He graduated in inner process work from the Astha Foundation for Human Learning and Growth, emphasizing the pedagogy of human experiential learning. As a certified master trainer by US8 and Award Society, he has conducted interactive seminars for over 1,500 individuals to spread awareness about HIV and AIDS. A certified psychometrician and career counselor, he has guided hundreds of working professionals and students for their growth and career choices. He engages with corporates for organizational development interventions in HR field. A passionate autism advocate, in partnership with Amaze Charitable Trust of Coimbatore, he supports special needs families through adventure camps as well as online platforms for special dads to share their inner emotional struggles and real world challenges of careers, of carers, and role of supporting the family in caregiving. Since 2017, he has been a student of Sujok and is an ISA qualified Sujok therapist. He is closely associated with the Origin Smile Foundation and practices Try Origin Smile meditation and mudra healing for special children and other individuals seeking healing. I welcome you, sir, to this episode of Inner Smile Talk Show. Smile, thanks.
तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और मैं अपना सबसे पहला प्रश्न पवन जी से करना चाहूंगी कि पवन जी, इन टुडेज फास्ट पेस वर्ल्ड where the mind is constantly occupied, how can one pause and access the inner smile instantly? आज की तेज रफ्तार जीवन शैली में जब मन लगातार व्यस्त रहता है, हम तुरंत अपने अंदर ही मुस्कान से कैसे जुड़ सकते हैं? सबसे पहले मैं मनप्रीत आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाया। मेघा जी हैं, स्माइल रिवाइव से प्रणालिका जी हैं, और हमारे जो स्माइल ऑर्गेनाइजेशन के गुरु हैं श्री पंकज सर, डॉक्टर पंकज जैन। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू दैट यू chosen me for this. As far as your first question goes, mind, मेरे हिसाब से आज तक समुद्र को किसी ने कंट्रोल नहीं किया है। नदी नाले फिर भी थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन समुद्र को किसी ने कंट्रोल नहीं किया है। और अगर आप अपने दिमाग को सी से कंपेयर करते हैं तो जिस तरह से समुद्र को कंट्रोल करना मुश्किल है, उसी तरह से हमारे दिमाग को कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल काम है। और आज की इस फास्ट जो जिंदगी है हमारी, जिसके अंदर की आदमी चलते चलते खा रहा है, सड़क पे चलते चलते भी मोबाइल देख रहा है, ट्रेन में है या कार में है, उसके अंदर भी उसको फुर्सत नहीं है। फुर्सत का मतलब अपने तरफ देखने का, अपने अंदर झांकने का। उस प्रोसेस के अंदर जो है आदमी अपनी ब्रीथ भूल जाता है, ब्रीदिंग स्टाइल भूल जाता है। ओरिजिन स्माइल या सुजोग थेरेपी हमें यह सिखाती है कि भी हम किसी को भी ग्रीट करते हैं तो हम स्माइल मॉर्निंग, स्माइल आफ्टरनून, वाई वी यूज स्माइल वर्ड इन द बिगनिंग। आज 1-2 सेकंड की स्माइल जो है, हमारी फोटो जो आती है इतनी अच्छी आती है उसके अंदर, और हर समय क्लिक करते समय फोटोग्राफर यही कहता है अच्छी। तो स्माइल मेडिटेशन या स्माइल, ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और हमारा जो दिमाग ऑक्यूपाइड रहता है उसे हम अनऑक्यूपाइड नहीं करना चाहते हैं, बट उस केस में भी हम उसके ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। और वो कंट्रोल जो है हमारी ब्रीद लाइन से होगा। हम अगर हमारे श्वास के ऊपर ध्यान देंगे तो ग्रेजुअली हम इस लाइव वर्ल्ड में रहते हुए भी हम समाधि स्टेज के अंदर ग्रेजुअली पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा सबको यही कहना है कि आप कहीं पे भी रहे, कोई भी हालत में रहे, आपको ब्रीथ के ऊपर कंट्रोल करना सीखना चाहिए। दिस ओनली आई वांट टू कन्वे। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, वेरी एप्टली सेड कि हम इतने अनअवेयर हैं आजकल कि अपनी ब्रेथ पे ही ध्यान नहीं जाता है, तो बाकी चीजें तो माइंड बाहर ही ढूंढ रहा है और अपनी ब्रेथ पे ही ध्यान नहीं है। बहुत बहुत अच्छे से आपने बताया सर, थैंक यू। राजेंद्र जी, मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे है दैट आवर बॉडी स्टोर्स मेनी अनस्पोकन इमोशंस, हाउ डज बॉडी स्माइल मेडिटेशन हेल्प इन रिलीजिंग व्हाट वी डोंट इवन एक्सप्रेस? हमारा शरीर कई अनकही भावनाएं संजो कर रखता है, बॉडी स्माइल मेडिटेशन उन्हें कैसे मुक्त करने में मदद करता है? Thank you, Manpreet ji. So, in the beginning, expressing my gratitude to Professor Park Ji-woo and our master, Dr. Pankaj Jain, and all our gurus who have helped us and helped me in my journey of Sujok and Tri-Origin Smile Meditation and Mudra Healing thus far. Right? So, coming, I'm just with a basic assumption that your viewers who have been watching this series are aware of the various forces, that is the heteroforce, neutroforce, heteroforce, homoforce, neutroforce, as well as
that the body is comprised of our soul, mind, body, and life. We as a human being. Okay. So with this little bit of background, the simple answer to your question, do the emotions, expressed as well as unexpressed, do they have the power to affect our body? So the answer is yes. And how they affect is because that these emotions have energy. These emotions come with some energy which has a power to spread into our body, and they affect some of the they affect our various organs, various body systems, our body joints, and so on. So the entire body can get affected by the energy of these emotions. Now, these emotions, if they are not expressed, they remain unexpressed, or if they are held for too long, then that leads to disharmony, or as we call disease of the various organs and systems. So having said that, yes, we can through body smile meditation neutralize their effects. I just want to give you some examples which the viewers can correlate with very easily. So before doing that, just one small example of one of these energies. For example, anger, गुस्सा. गुस्सा किसको नहीं आता? कई बार हमारे दिनचर्या में, डे टू डे लाइफ में हमारे बहुत सारे इंटरेक्शंस होते हैं, हमारे संवाद होते हैं घर के अंदर, परिवार के अंदर, या बाहर काम के जगह पर, इन प्रोफेशनल लाइफ, या फिर सोशल सर्कल्स में फ्रेंड्स के साथ. और कहीं ना कहीं कोई चीज जो हमारे मन के हिसाब से नहीं हुई, विच इज नॉट एज पर आवर लाइकिंग, वी मे गेट अ सेंस ऑफ एंगर, द फीलिंग ऑफ एंगर, दैट इमोशन. या जैसे कोई किसी ने डांट दिया, किसी ने टॉन्ट कर दिया, किसी ने कुछ कह दिया, गुस्सा तो आया, उसकी एनर्जी है, और वो बोल नहीं पा रहे हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस, है ना, लिहाज करके सामने वाले का, या वैल्यूइंग द रिलेशंस मोर, वी वांट टू मेंटेन दैट रिलेशन, नहीं एक्सप्रेस करना चाहते. तो दैट इज गोइंग टू, दिस एंगर एनर्जी is certainly going to keep affecting. And where it affects, for example, in our liver and in our gallbladder. Or it can manifest into things like migraine, joint pains, joint stiffness, and so on. तो इस तरह से हैं all 6 energies and various organs. So coming to simple day-to-day examples, in our adult life, for the viewers, you can take it both ways, for the males as well as for the females. So, for instance, some of the women going into their married home, पहली बार शादी के बाद जब जा रहे हैं, तो there you are coming up with new relations. Husband है, in-laws हैं, mother-in-law हैं, है ना. So some places there will be certain interactions जहाँ पर अलग अलग तरह के emotions फील होते हैं. गुस्सा आता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. या फिर जैसे या यंग एज में जो है, बॉयज एंड गर्ल्स रिलेशनशिप्स में है, ब्रेकअप हो गया, या कहीं सबके सामने टीचर ने डांट दिया है, तो इंसल्ट सा महसूस हो रहा है. तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट. और इन द ओल्ड एज ऑल्सो, जो व्यूअर्स अभी एक ऐसे जिंदगी के पड़ाव पर हैं जहाँ पर नाना नानी, दादा दादी बन चुके हैं, और जॉइंट परिवार में है, तो या फिर अभी आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है, बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल जॉब रिक्वायरमेंट्स, पीपल आर स्टेइंग अवे फ्रॉम पेरेंट्स. तो सेंस ऑफ बीइंग निग्लेक्टेड, सेंस ऑफ लोनलीनेस, तो और तरह तरह के इमोशंस. तो ये सारे इमोशंस जो हैं, इनकी जो एनर्जी है, ये हमारे शरीर के अंदर भी, यदि हम उससे एक्सप्रेस नहीं कर पाए डायरेक्टली टू द पर्सन हु इज कॉजिंग द इमोशन, या फिर कहीं और शेयर नहीं कर पाए, तो ये होता है. और इनको, जैसे द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, हाउ बॉडी स्माइल मेडिटेशन कैन हेल्प. तो बॉडी स्माइल मेडिटेशन कैन बी डन इन सो मेनी वेज, है ना. तो इट कैन बी डन इन सिटिंग पोस्चर, इट कैन बी डन इन लाइंग डाउन पोस्चर, स्टैंडिंग पोस्चर, मूवमेंट के साथ, वॉकिंग के साथ, डांस के साथ. देयर आर सो मेनी वेज ऑफ डूइंग इट. तो simplest things are like in a sitting posture, you're talking about holding a certain posture of the body and looking slightly upwards with a smile on your lips, and the lip corners going up, and then concentrating or focusing, looking inwards on your breath. So this is one of the starting जैसे हम लोग सीखते हैं. So that is the simplest form, and then you can get into deep inner self meditativeness, in spite of, despite of, यानी
जो भी विचार आ रहे हैं जा रहे हैं उसके भी परे उनके पीछे ए सेंस ऑफ कामनेस, लाइटनेस एंड ऑल दीज थिंग्स. सो ये इस तरह से है. That is one of the forms, and otherwise even the smile has got so many types of forms, है ना. So, we talk about calm lip smile. जैसे बुद्धा जी सर. बुद्धा के स्टैचू में देखते हैं यार, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस वी सी सम रेवरेंट फिगर्स, काम लिप स्माइल. लाफिंग लिप स्माइल, जो मुंह पूरा खुला है, जो जोर से ठहाके लगा रहे हैं, हंस रहे हैं, है ना. या फिर जैसे कंट्रैक्टेड लिप्स, या जैसे एक आमतौर की भाषा में बोले, बोलचाल की भाषा में बड़े प्यार से हम जैसे माथे को चूमते हैं बच्चे को, या किसिंग लिप स्माइल भी यदि हम उसे कहें, है ना. और एक सोशल स्माइल. तो ये जी. तरह तरह के स्माइल्स अडॉप्ट कर सकते हैं. स्माइल ब्रीदिंग होता है, उसकी टेक्निक सिखाई हुई है ना. उसके अलावा हम लोग मूवमेंट्स के साथ, बॉडी के मूवमेंट्स के साथ चक्रा ओपनिंग्स, जो इनर चक्रास है उनका चक्रा ओपनिंग, सो दैट एनर्जी, द ब्लॉक्ड एनर्जीज कैन गेट रिलीज. मंत्रा जोड़ सकते हैं, ट्राई ओरिजिन स्माइल मंत्रास हैं. और उसके अलावा Absolutely. ताइची कर सकते हैं, है ना. सो देर आर सो मेनी वेज इन विच दिस बॉडी स्माइल मेडिटेशन कैन डेफिनेटली न्यूट्रलाइज द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द unexpressed and blocked emotions. Yes, thank you so much, Rajendra ji. Very beautifully expressed. And there are so many ways in which we can actually release the unspoken emotions जो suppressed हैं और जिनको हम बहुत बारी तो I think रिश्ते बनाए रखने के लिए ही हम बोलते नहीं है, अवॉइड कर जाते हैं. Beautifully expressed. Thank you so much. And in fact, if your viewers, those who are interested, if they can put some queries, questions, जिसके भी मन में आ रहे हैं in the comments when they are watching this, so we can definitely help them further. Absolutely. Thank you. पवन जी, मेरा next question आपसे है. What is the biggest misconception people have about working with the mind? And how does smile meditation change that understanding? मन के साथ काम करने को लेकर लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है और स्माइल मेडिटेशन उसे कैसे बदलता है? माइंड को कंट्रोल करने के लिए हम सोचते हैं कि भी कंसिस्टेंस, हम उसके ऊपर प्रेशर डालें या कुछ करें उससे हमारा माइंड चेंज हो सकता है. दैट इज इम्पॉसिबल. हमको नदी की धारा के जैसे या बहाव के जैसे बहना पड़ेगा. तो दिमाग को रोकने की जगह दिमाग को हम अगर काम करने दें, जो जिस सोच में वो जा रहा है उस सोच में जाने दें, और हमारी ब्रीथ के ऊपर हम अगर ध्यान दें, तो थोड़े समय के अंदर हमको लगेगा कि माइंड अपने आप काम होते जा रहा है. माइंड काम होगा, हमारा दिमाग शांत होगा, चेहरे के ऊपर, होठों के ऊपर थोड़ी मुस्कान होगी, तो हमें शांति महसूस होगी और हमको ये फील होने लग जाएगा कि आई एम इन अ बेटर पोजिशन. तो इसके अंदर वापस वही चीज आती है कि भाई ठीक है कि यू हैव टू फ्लो विद द रिवर एंड लेट योर थॉट्स फ्लो, बट कीप वॉच ऑन योर ब्रीथ. दैट विल ओनली सपोर्ट यू. तो स्माइल मेडिटेशन, स्माइल टॉक, स्माइल थॉट. अब थॉट्स तो दिमाग से आते हैं, तो थॉट कैसे चेंज होंगे? डाइवर्सन से. लेकिन अभी हमने शुरू में कहा कि डाइवर्शन हमको करना नहीं है, क्योंकि हम कर ही नहीं पाएंगे, हमारे हाथ में ही नहीं है. तो उसको एक्सेप्ट, अगर हम कोई भी चीज को ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो अपने आप सारी चीजें ग्रेजुअली ठीक होती जाती है. दिमाग से सबसे पहले हार्ट के अंदर कोई चीज आती है, हार्ट प्रफुल्लित हो जाता है, जॉयफुल हो जाता है, तो बाकी के सारे ऑर्गन्स भी जो हैं वो भी जॉयफुल फील करने लगते हैं. राजेंद्र जी ने बॉडी स्माइल मेडिटेशन के लिए बताया, तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो इसके लिए रिफ्लेक्ट होकर के और फिर अल्टीमेटली जो रिजल्ट हमको चाहिए वो रिजल्ट हमको मिल जाता है. मेडिटेशन जो कॉन्सेप्ट है योगा के अंदर, उस मेडिटेशन में और हमारे स्माइल थ्योरी के अंदर जो है मेडिटेशन में बहुत बड़ा फर्क है.
फर्क ये है कि हमारा स्माइल मेडिटेशन जो है वो जागृत अवस्था में होता है, आप जिस लाइव वर्ल्ड में जी रहे हैं उसके साथ होता है, न कि आपको किसी अलग जगह जाकर के एकांत में जाकर के बैठ करके और आपको समाधि लगानी है। देयर इज a huge difference in the meditation where you feel that you are reaching to a stage near the God or in a zero word kind of a thing, what we call this. हमारे केस के अंदर फर्स्ट इज स्माइल मेडिटेशन। स्माइल से जब हमारी ब्रीथ के ऊपर कंट्रोल होता है, हमारे दिमाग के ऊपर कंट्रोल होता है, देन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली वी रीच टू द स्टेज ऑफ समाधि। आई थिंक this is good enough to understand the people who are listening this. Thank you. Yes. Very nicely said, sir. Beautiful things to gather from here. कि एक तो कहा जाता है ना, whatever you resist will always persist. जहां हम resistance लाते हैं वो चीज और परेशान करती है। तो acceptance is the key. कि एक्सेप्ट कर लें जो है। एंड उसके सेकेंड चीज जो आपने बताई वो बहुत सुंदर, कि ये स्माइल मेडिटेशन इज सच अ प्रैक्टिकल वे ऑफ लिविंग, कि आप हर चीज में हर मोमेंट पे अवेयर रहें और स्माइल के साथ चीजों को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे तो नेचुरली फोकस हमारा सोल्यूशन पे ज्यादा जाएगा, प्रॉब्लम पे कम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वेरी ब्यूटिफुली सेड सर, थैंक यू। राजेंद्र जी, आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कैन यू गाइड अस ऑन हाउ टू यूज बॉडी स्माइल मेडिटेशन इन द मिडल ऑफ अ चैलेंजिंग मोमेंट, नॉट जस्ट ड्यूरिंग क्वाइट मेडिटेशन। क्या आप बता सकते हैं कि शांत ध्यान के अलावा कठिन परिस्थितियों के बीच में भी बॉडी स्माइल मेडिटेशन का उपयोग हम कैसे करें? जी मनप्रीत जी, एक प्रोफेसर पार्क ने एक बहुत अच्छा एक कहीं जगह में लिखा है that one should not wait for a reason to smile, है ना? Smile itself is the reason for everything to get better in our life. और अभी अभी जैसे पवन जी ने बताया कि जो स्माइल मेडिटेशन है वो रियल लाइफ सिचुएशन में जागरूक अवस्था में रहते हुए अपनी सारी दुनियादारी के रिलेशनशिप्स या वर्क प्लेस प्रोफेशन सब मेंटेन करते हुए हम कर सकते हैं, स्माइल स्टेट में रह सकते हैं। अभी ये कहने के बाद ऐसा तो नहीं कि कहीं उतार चढ़ाव तो आएंगे नहीं, तो जिसे आप चैलेंजिंग सिचुएशंस कह रही है, तो दैट कैन हैपन इन फैमिली, इट कैन हैपन इन वर्क प्लेस, इट कैन हैपन अमंग्स फ्रेंड्स, इन सोशल सर्कल, एनीवेयर, है ना? तो उस वक्त तो हम ये नहीं बोल सकते कि आप 10-15 मिनट अलग से बैठ जाओ, भले खुले आंखों के साथ में, और मुद्रा लगाइए, ध्यान दीजिए, जो आसपास हो रहा है उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होइए, ये तो हम नहीं कह सकते। तो रियल लाइफ में कैसे हैंडल करें, वो उसके लिए बहुत बढ़िया जो जो आपने सवाल किया कि देयर आर सो मेनी वेज। वन इज, सबसे पहले स्माइल, ये अपना स्माइल ब्रेथ, सांस तो आपके पास है, चल रही है, आप जो भी इंटरेक्शन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम और आप अभी इस वक्त रूबरू हैं एक दूसरे के साथ, बातचीत भी हो रही है, लेकिन सांस तो चल रही है ना। तो जैसे ही यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ गेटिंग इमोशनली चार्ज इन अ चैलेंजिंग सिचुएशन, तो एक स्माइल, मतलब इस प्रैक्टिस को करते करते हमें तो ये ख्याल आ ही जाता है कि यस, आई कैन ऑब्जर्व दैट आई एम गेटिंग इनटू अ एग्रेवेटेड स्टेट, वो भले एंगर हो, फियर हो, जो भी स्टेट हो। तो ऐसे सिचुएशन में वी हैव टू ओनली काम आवर ब्रेथ, फोकस ऑन आवर ब्रेथ। सेकेंड थिंग कि जैसे मान लीजिए आप मीटिंग में हैं और सामने से कोई आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत नहीं है, या बॉस है वो चिल्ला रहा है आपके ऊपर या नाराजगी दिखा रहा है, तो टेबल के नीचे आप हाथ ले जाके बैठ सकते हैं, और जो भी आपकी मुद्राएं हैं वो हाथ के ऊपर मुद्रा लगा सकते हैं, या फिर यू कैन जस्ट लुक एट योर पाम्स। एंड प्रोफेसर पार्क ने जो बहुत बढ़िया देन दी है पूरी दुनिया को, that our hands are holding a complete correspondence with the entire body system, structure, organs, everything. And यदि हमें पता है कि अभी हमें गुस्सा आ रहा है, तो which is the organ going to get affected? It is going to be your liver, right? So there, वहाँ पे all that one does is, if you know where is the liver correspondence area, you can rub that area, or without even anyone coming to know what you're doing, या फिर simply looking at it and giving it a smile. So in these kind of challenging situations, there are so many ways of adopting
smile breathing techniques of also, you can easily rub your hands or massage the respective areas, or directing smile breath towards that organ on your palms, है ना? या फिर even if you are applying your mudras below, no one even need to come to know, किसी को पता भी ना चलेगा कि ये कर क्या रहा है, एंड आप साथ साथ बातचीत भी करते रह सकते हैं, है ना? Very beautifully explained, Rajendra ji. Such a practical way. And आपने वो लाइव एग्जाम्पल के साथ समझाया, तो वो और भी इतना इजीली समझ में आया कि ब्रेथ तो हमारे पास है, हम उसके साथ स्माइल जोड़ दें तो इट इज सो ब्यूटिफुल। तुरंत ही हम बिना किसी के जाने अपने आप को, मतलब अपने आप की ही ब्रेथ से अवेयर हो जाएंगे और रियलाइज कर सकेंगे कि हमें अपने आप को काम रखना है। थैंक यू सो मच सर। पवन जी, आपसे मेरा अगला सवाल है, हैव यू एक्सपीरियंस्ड moments where mind smile meditation shifted a difficult situation into a positive one, and can you share an example? क्या आपने ऐसे पल अनुभव किए हैं जहां माइंड स्माइल मेडिटेशन ने किसी कठिन परिस्थिति को सकारात्मक बना दिया है, और क्या आप कोई उदाहरण साझा करेंगे? देखिए, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरे को सुजोग थेरेपी का भी उस समय पता नहीं था और स्माइल मेडिटेशन का भी पता नहीं था। लेकिन जब ये सारी चीजें मैंने सीखी और मेरे पास्ट लाइफ का जो एक्सपीरियंस है या जो मेरे थॉट प्रोसेस थे, उसको मैं इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि इट इज ऑल वेरी वेल कनेक्टेड विद द स्माइल। 1985 June, my father expired when I was 32 years. तो ठीक है, आई वॉज हैंडलिंग द बिजनेस, जो मेरा पेरेंटल बिजनेस था वो। लेकिन ऑल ऑफ सडन एट दिस एज व्हेन यू हैव सच अ ग्रेट शॉक कि बेटी का कि नहीं, मेरे तो गाइड मेंटर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द इंटायर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन यू टू बी एल्डेस्ट वन इन द फैमिली। तो करीब 2 दिन तक तो मैं एकदम शॉकिंग पोजीशन में रहा। लेकिन अब जो किशोरदा का गाना है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या हो किसने जाना, तो उस समय भी ये था कि भाई ठीक है कि नहीं, अभी हमारे हाथ में तो कुछ था नहीं, एंड ऑल ऑफ सडन दिस इज हैपेंड। तो उस थर्ड डे मैंने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर। द मोमेंट आई एक्सेप्टेड द सिचुएशन, 50% of my tension, my things has gone away. And I sat quietly with a peaceful mind that yes, okay, जो होना था हो गया, अब इसमें हमको आगे कैसे बढ़ना है। तो राजेंद्र जी भी बता रहे थे कि भाई ठीक है कि पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, God has given me an opportunity to be a leader. I was working under someone, now I'll be the alone boss. All those kind of things. ठीक है, responsibility was one part, but leave apart that, जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके अंदर मैं क्या करूंगा, मेरे जिम्मे क्या होगा, मैं क्या कर सकता हूं, एक्सेप्ट करने के बाद में वो थॉट प्रोसेस आना शुरू हुआ। उसके पहले कोई भी वो थॉट प्रोसेस नहीं आता था। एंड ग्रेजुअली दैट ब्रीदिंग पैटर्न हैज ऑल्सो बिकम नॉर्मल। तो कई टाइम के ऊपर कई सिचुएशंस हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो उस केस के अंदर भी जो है कि अगर हम थोड़ी सी स्माइल करके और अगर ब्रीथ को कंट्रोल करें तो ऑटोमेटिक वो चीज आ जाएगी। लेकिन उसके पहले अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बाकी चीजें भी ग्रेजुअली अपने आप हो जाती हैं। और फिर उसके अंदर जैसे हम कहते हैं कि भी चाय के अंदर हमने शक्कर डाल दी तो और मीठी हो गई या और अच्छी हो गई। जो लोग बिना
शक्कर की चाय पीते हैं उनके लिए ये बात नहीं है, लेकिन जिसको चाय पीनी है वो बिना शक्कर की चाय नहीं पी सकता है। और कई लोग तो चाय पीते इसीलिए हैं कि भाई शक्कर चाय में मिलती है। तो ये मिठास जिंदगी के अंदर भी इसी तरह से आता है, जिस तरह से चाय में शक्कर मिलाने से आता है, कि हम सिचुएशंस कैसी भी हो उसको एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट करके स्माइल ब्रीथ करें, ब्रीथ कंट्रोल होगी, सारी चीजें। समय ही सब कुछ करवाता है, समय ही रुलाता है, समय ही हंसाता है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो जब आप कोई चीज बदल ही नहीं सकते हो तो फिर उस चीज के ऊपर चिंता या उस चीज के ऊपर टेंशन करके फायदा क्या है। आज का पॉडकास्ट 3 बजे का था, मेरे को तो 2:45 के ऊपर ध्यान में आया कि मेरे को पॉडकास्ट अटेंड करना है। एंड व्हेन आई केम हियर माय नेट वाज नॉट फंक्शनिंग। तो ठीक है, आई एक्सेप्टेड इट कि भाई नहीं है, नहीं है, नहीं होगा तो नहीं होगा अटेंड, अगर होना होगा तो हो जाएगा। तो दिस इज द सिचुएशन। थैंक यू मनप्रीत। बहुत सुंदर और बहुत सरलता से आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि एक्सेप्टेंस इज एक्चुअली द की, कि हम जहाँ अपने मन मन में वो एक्सेप्टेंस ले आएंगे तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चेंज ये भी आ जाता है कि बहुत बार लोग सोचते हैं कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, हमेशा हम किसी ना किसी पे ब्लेम ही डालते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हुआ। एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज हो जाता है कि ये हमें क्या सिखाना चाह रहा है। तो कोई ना कोई सफरिंग अगर आई है तो वो हमारे अपग्रेडेशन के लिए ही आई है। ब्यूटिफुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। राजेंद्र जी, आपसे मेरा अगला सवाल है, हाउ डज बॉडी स्माइल मेडिटेशन डीपन आवर कनेक्शन विद सेल्फ लव एंड एक्सेप्टेंस? बॉडी स्माइल मेडिटेशन हमारे आत्म प्रेम और स्वीकारता को कैसे गहरा करता है? जिंदगी जिंदगी जो है, ये जैसे अभी पवन जी ने भी कहा, तो मुझे भी आनंद सिनेमा 1970 का दशक का बहुत सुंदर गीत था। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए, है ना। तो अप्स एंड डाउन्स आर देयर इन द लाइफ। बचपन से लेकर के जिस भी अवस्था तक हम पहुंचे हैं अभी, है ना, कई बार बचपन में ऐसा होता है कि कंपैरिजन होता है। परीक्षा में नंबर कम आए, पड़ोस के बच्चा जो आपके साथ पढ़ता है उसके इतने आए, आपके क्यों आए इतने कम। या कभी कुछ डांट लग जाती है, कुछ डीप इमोशन गहरा हमारे ऊपर सदमा कर जाता है। सो ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, सो जहाँ पे एक सेल्फ एस्टीम लो होने लगता है, एक भावना ऐसी आ जाती है कि आई एम नॉट इनफ, विल आई बी एबल टू डू, फियर ऑफ फेलियर आने लगता है। जिंदगी में आगे चल के कई चैलेंजेस आते हैं, जिस भी फील्ड में, पढ़ाई के क्षेत्र में, काम के क्षेत्र में, या पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन में, है ना। तो ये धीरे 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 करके जो है हमारे इनकलकेट हो जाते हैं अंदर। तो इन सब से उभरने के लिए बहुत ही सुंदर तरीका है स्माइल मेडिटेशन का, बॉडी इट एंड हाउ इट कैन कनेक्ट अस बैक वंस अगेन टू आवर इनर कोर। वो पोटेंशियल है सब में जिसको हम ओरिजिन स्माइल कह रहे हैं। सो बॉडी स्माइल मेडिटेशन के थ्रू वी कैन गेट कनेक्टेड, रिकनेक्टेड, रीइग्नाइट आवर इनसाइड पोटेंशियल, जिसे कहते हैं रीइग्नाइट द पोटेंशियल ऑफ योर ओन ओरिजिन स्माइल, स्टार्ट बिकमिंग कॉन्फिडेंट। और एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस वाली बात पवन जी ने जैसे बताई, तो वो उसमें दो बातें हैं। आपने जो सवाल किया, सेल्फ लव एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस, तो एक तो सेल्फ को भी एक्सेप्ट करना है। हाँ, नॉट एवरीबडी कैन बी परफेक्ट, देर आर सम एवरीबडी, जो हम सब जो है एक यात्रा में है, एक जर्नी है। एवरीबडी इज वर्क इन प्रोग्रेस, एट नो स्टेज वन कैन से आई हैव बिकम परफेक्ट, देर इज ऑलवेज अ लिटिल मोर परफेक्शन अबाउट इट ऑल्सो, ठीक है। तो सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सटर्नल रियलिटीज, जो जैसे बहुत बढ़िया उदाहरण पवन जी ने भी दिया। तो कुछ ऐसे ही एग्जांपल्स हम सबके जिंदगी में आए होंगे, और खास करके जो भी जिस भी तरह के मेडिटेशन है, और खास करके ट्राई ओरिजिन स्माइल मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं,
तो जब ऐसी कोई कठिन परिस्थिति आ जाती है तो उसे उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए परिस्थिति को स्वीकारना कि ये तो होने को कोई नहीं टाल सकता समय के साथ, है ना, तो उसे एक्सेप्ट करना। तो वी आर एबल टू, जो कुछ भी दुख होता है, जो कुछ भी चैलेंज होता है, उसका हम अच्छी तरह से हम उसे फेस कर सकते हैं और उसके बाद में रियलिस्टिक वे में हम हमें आगे की जिम्मेदारी कैसे निभानी है वगैरह। तो दैट इज अबाउट द एक्सटर्नल एक्सेप्टेंस, सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम, फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये सारी बातें जो है ये सेल्फ लव से जुड़ी हुई हैं और स्माइल मेडिटेशन का ये बहुत ही सुंदर रास्ता है। बहुत सारे तरह के मेडिटेशन से हर कोई अच्छा है। यहाँ पर जैसे हमने कहा कि पवन जी ने भी बताया, हमने भी बताया, बैठे बैठे कर सकते हैं, लेट के, खुली आंख से, बंद आंख से, चलते चलते, डांस करते करते। देयर आर सो मेनी वेज इन सच सिंपल वे, डे टू डे लाइफ के अंदर, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं उन्हें हम स्माइलिंगली करते रहें और साथ साथ मेडिटेटिवनेस में भी हम रह सकते हैं, है ना। तो इस तरह से वन कैन ओवरकम दिस एंजाइटीज, दिस फियर्स, एम आई इनफ, विल आई फेल। तो जब वो कहते हैं ना कि हेल्दी बॉडी हाउस इज हेल्दी माइंड, and when the mind is peaceful and happy and healthy, the body is also conversely healthy and happy. So one can then face the external world with confidence, with acceptance of the self, acceptance of surrounding situation, and with great self confidence and self love. बहुत बहुत ही सुंदरता से आपने समझाया राजेंद्र जी। हम एक्सेप्टेंस की बात तो कर ही रहे थे, पर उसमें ही एक और सुंदर चीज जुड़ गई कि सेल्फ एक्सेप्टेंस, जो हम वैलिडेशन कहीं ना कहीं बाहर ढूंढ रहे होते हैं, या बचपन से ही वो कंपैरिजन और वो चीजें हम देखते हैं। तो ब्यूटीफुल है कि जिस वैलिडेशन को हम बाहर ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने आप, पहले हमें अपने आप से प्यार करना है। और ट्राई ओरिजिन स्माइल मेडिटेशन इज सच अ ब्यूटीफुल प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ कि वो सबसे पहले शुरुआत अपने आप से ही करना सिखाता है। और जैसे जैसे हमारा कप ओवरफ्लो होगा, वो धीरे धीरे हमारे सराउंडिंग्स में भी वो स्माइल पहुंचती चली जाती है। थैंक यू सो मच फॉर जो बहुत ही बढ़िया आपने, यू ऑलमोस्ट लेड द आइसिंग ऑन द केक, सोर्स ऑफ रिप्लेनिशमेंट। यस, ओवरफ्लो की बात तो तब आएगी when we are able to replenish, तो inside से रिप्लेनिश, यस, replenishment from our inner source and overflow, it will beautiful. Thank you, Ankit ji, एब्सोल्युटली, for adding on this एब्सोल्युटली। new awareness. Thank you so much to both of you, Rajendra ji and Pavan ji, for sharing such beautiful thoughts. And इतने practical way से आपने examples के साथ समझाया, जो समझना बहुत ही इजी हो गया। कई बार ये सब्जेक्ट इतना कठिन लगता है सबको और लगता है कि रियलिटी से परे है, बट आज हमने जाना कि इट इज रियली द प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच। एंड ट्रूली कि अ हेल्दी बॉडी एंड अ पीसफुल माइंड अगर आपके पास है तो आप सच में सबसे ज्यादा धनवान हैं। और इसी थॉट के साथ हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, उसको एक पॉज देते हैं। फिर मिलेंगे आगे के एपिसोड्स में कुछ नए गेस्ट के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ, और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्प्रेडिंग स्माइल्स। आपकी अगर कोई क्वेरीज हैं, कोई अगर क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशंस हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। वी आर अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू सो मच फ्रॉम द स्माइल स्पिरिट टीम। A very, very big thank you to our viewers. Thank you. Thank you, everyone. Till we meet next time.